Good morning, all. The last meeting we have discussed about the components of a vector. Components of a vectors are nothing but the coordinates of the tip point or tip of the vector. If we are taking OP vector and P is a point with coordinates x comma y, then x and y are known as components of a vector. Also, we have discussed that these x and y are also known as directions ratios. Directions ratios are not unique, and also we discussed that directions cosine of a vector. Directions cosines are unique because a line, a vector, when making an angle with x-axis and y-axis known as direction angles are always fixed till the vector OP will not change its position. When it will slightly move from OP to OQ, then the angle will change. And when the angle will change for OQ vector, there will be the another directions cosine. So for a vector OP, directions cosines are always fixed, unique. But directions ratios may be infinite for a vector because each point on the vector OP will represent directions ratios, coordinates of the point. These are also known as directions ratios. That was the last discussion in 2D. Am I right? And these x and y are denoted, these x and y are sometimes denoted by AB also, and directions cosines are denoted by L and M, and formula for the directions cosine is x equal to L equal to cos alpha and M equal to cos beta, and cos alpha equal to x upon r and cos beta equal to y upon r, where x alpha is the angle made by the vector with x-axis and beta is the angle made by the same vector with y-axis. So cos alpha and cos beta, of course the answer will be in between -1 and 1. These are known as directions cosine and denoted by small n and small n. And we also observe that L square plus M square is 1. Sum of the directions cosine, sum of the squares of direction cosine is equal to 1. It was discussed in the last class in 2 dimension. As I told you, all the things will be discussed in the 3D also without proof. So now we are writing all this in 3D. Let's start in 3 dimension. In 3 dimension, this is the vector OP with coordinates x, y, z. Sometimes it is noted by ABC. Also in different books you can find coordinates are sometimes ABC and sometimes x, y, z are used. These x, y, z will be directions, ratios or components of a vector. If we make OP vector with R, in this direction IK is unit vector, JK is unit vector and KK is unit vector in the direction of x-axis, y-axis and z-axis. So this OP vector will be R vector equal to xi plus yj. It was in 2D, xi and yj. Write one more term zk. This is OP vector. And as we have find its magnitude, R vector equal to will be root of x square plus y square plus z square. Coefficients of I, j, k square and sum. Sum of the squares of the coefficients of I, j, k, you will get modulus if taking the square root sign. So square root of sum of squares of coefficients of I, j, k will give the magnitude of the vector, and the direction is from O to P, where P is the terminal point of that vector having coordinates x, y and z. X, y, z are known as directions ratios. Oh, sorry, are known as, first we write components. Xi, Yj, Zk are known as component vectors. Component vectors. X, Y, Z are also known as DRS.
means direction ratios. Directions ratios. DRS is the short form for directions ratios. XYZ. Sometimes A is to B is to C. ऐसे भी डिनोट करते हैं ABC और ABC और R. Different ways to write DRS. These are the different ways of writing the DRS. Different way of writing the DRS. Sometimes H to B is to C लिखा हुआ मिल सकता है. Sometimes इस less than greater than के साइन के अंदर इस तरह से not ordered pair ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है. X to Y to Z. ये नोटेशन है DRS के लिए. L equal to cos alpha X upon R. L equal to Y upon L equal to cos beta Y upon R and L equal to cos gamma Z upon R. These elements L is to M is to N are known as directions cosine. This angle is alpha, this angle is alpha, this angle is beta, and this angle is gamma. Alpha, beta, gamma are angle made by the vector OP with x-axis, y-axis, and z-axis. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are the directions cosine denoted by element x upon r, y upon r, z upon r. The formulas for this L is to L square are known as the direction cosine. Short we are writing DCS. DCS. For DCS, L square plus M square plus N square will be equal to 1. Sum of the squares of the direction cosine is equal to 1. As in 2D we have written L square plus M square equal to 1. There any doubt? Like to discuss something? Visible, audible. So L is to M is to N are known as directions cosines, and this L square plus M square plus N square equal to 1 are known as this gives 1 because of directions cosine. Sum of the square of direction cosine is 1. Also we can write R vector equal to xi plus yj plus zk. We can divide by its modulus, means x upon r, y upon r plus z upon r. This x upon r we can write Li, Mj and Nk. This will become R cap. I told you earlier also, when it is cap, then Lm and N will be the directions cosine, means coefficients of ijk will be the directions cosines. If R cap and if R vector is there, then the coefficients of ijk will be the directions ratios. Keep it in your mind because this is the common mistake done by the student in exam. When the cap is written, the coefficients of ijk will be the directions cosine, and the sum of these directions cosine will be equal to 1. Please take the screenshot. Directions cosines and directions ratios are proportional. Directions ratios and directions cosines are proportional. L is to M is to N. Sorry. L is to M is to N is proportional to A is to B is to C. L is proportional to A, M is proportional to B, and N is proportional to C. We are writing this L equal to AK,
m equal to bk and n equal to ck. You know that L square plus m square plus n square equal to 1. Therefore, a square plus b square plus c square with k square equal to 1. So k equal to 1 upon root of a square plus b square plus c square, the value of k. This is the value of k with plus minus sign you can use. Therefore, L equal to ak और k की वैल्यू 1 अपॉन ये, तो प्लस माइनस c square. Similarly, m plus minus a upon and n equal to not plus b upon, and this is c upon root of a square plus b square plus c square. For OP vector, use plus. For TO vector use minus. प्लस माइनस यूज कर रहे हैं ना पर इसमें ऐसा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, because for a vector OP and PO angle will be alpha and pi minus alpha, and cos pi minus alpha is equal to minus cos alpha. That's why it is negative. हम ऐसा लिखते हैं OP वेक्टर ये अल्फा है अगर इसके साथ में बना हुआ एंगल, दिस एंगल, और विथ एक्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस. तो ये जो एंगल बनेगा वो पाई माइनस अल्फा हो जाता है. पीओ वेक्टर इस डायरेक्शन में, ओपी वेक्टर एंड पीओ वेक्टर. सो प्लस माइनस साइन वी आर यूजिंग फॉर वेक्टर. तो सेम मतलब लाइन सेगमेंट तो एक ही है, लाइन तो एक ही, बट ओपी और पीओ लिख रहे हैं इसलिए प्लस माइनस यूज करते हैं हम इसके अंदर. Take the screenshot. The same theory will be used in chapter number 11 3D. तो 3D की आप यहाँ लिख लो, चैप्टर 8 subtraction multiplication in terms of components. Okay, next point. Point number 14. Okay. Addition, subtraction, multiplication with scalar in terms of components. Addition, subtraction, multiplication with scalar in terms of component for vector. वेक्टर की बात चल रही है, ऑफ कोर्स वेक्टर के लिए. लेट A is a vector with components a1i plus b1j plus c1k. अब मैं आपको ये बार बार नहीं समझाऊंगा ना abc क्या है, a1 b1 c1 क्या है, ये dr's है. ijk के जो कोफिशिएंट्स है वो dr's है, कंपोनेंट्स है. ठीक है, तो ijk के कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए, ijk के जो कोफिशिएंट्स है वो dr's है. मतलब हम चाहे तो यहाँ साथ में लिख सकते हैं dr's a1 b1 c1 ऐसे. बी वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k, दूसरा वेक्टर ले लिया हमने. इसके dr's a2 b2 c2. components also you can say. A and B vectors are given. Now if you want to add, first point addition. अभी आपको मैंने इससे पहले जो वेक्टर का एडिशन बताया था उसमें ऐसे बताया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक डायरेक्शन ऐसे लो, एक डायरेक्शन ऐसे लो, नीमस से, नो नॉट नीमस से, कॉन्वेंट स्कूल से यू विल मूव टू द गोमाबाई, देन गोमाबाई टू द सुंदरम. याद आया? ऐसे बताया था, उसके अंदर ज्योमेट्रिकली बताया था हमने उसे.
अब हम एलजेब्रा इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो अब हम दो वेक्टर्स को कैसे प्लस करेंगे ये समझ रहे हैं। तो दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड द टू वेक्टर्स, ऐड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डीआरएस और कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। मींस आई के साथ वाली टर्म अगर मैं नहीं बताता तो भी आप ऐड कर लेते, लाइक टर्म्स को ऐड करना बचपन से आता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट लगा लेते आप। लेकिन यूज क्या कर रहे हैं हम, देयर कॉरस्पॉन्डिंग डीआरएस आर एडेड, व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड वी आर एडिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग डीआरएस। कॉरस्पॉन्डिंग डीआरएस मतलब आई के साथ वाले, जे के साथ एंड के साथ। सो you will get new vector c1i plus c2j plus c3k, suppose new vectors you will get. So how to add the two vectors when given in the components form? Just add their corresponding components or corresponding DRS. Subtraction a minus b सिमिलर हो जाएगा a1 माइनस a2i प्लस b1 माइनस b2j प्लस c1 माइनस c2k। ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए इसके ऊपर आपको केप लगाना है। ठीक है, आईजेके के कोफिशिएंट, आईजेके के ऊपर केप लगाने हैं यूनिट वेक्टर्स। दिस यू विल गेट सपोज d1i प्लस d2j प्लस d3k components. Suppose this vector is d. Difference of two vector will be again a vector. ये तो बता दिया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज अगेन ए वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, let k belongs to r, not 0, any real number not equal to 0, then ka vector will be ka1 plus kb1 I j kc1 k। के एक रियल नंबर है कोई सा भी, या लेमडा ले लेते हैं क्योंकि आई जी के का के से कंफ्यूज होता है, तो लेमडा ले लो, एम ले लो, टी ले लो, लेमडा लेमडा लेमडा। इससे एक नया वेक्टर मिलेगा आपको, लेमडा का मल्टीप्लाई करने पे इसको ई वेक्टर ले लो। सपोज दिस इज ई आई प्लस ई वन आई प्लस ई टू जे प्लस ई थ्री के। मीन्स कंपोनेंट्स में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे डीआरएस में किसी नंबर का, तो एक नया नंबर आ जाएगा हमारे पास, ई वन ई टू ई थ्री। इसलिए एक नया वेक्टर आता है। वेक्टर्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और एक वेक्टर आता है। ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको, 1/2 वेक्टर, 2 टाइम्स वेक्टर्स बताया था आपको ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और क्या लिखा था इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड व्हाट वाज द पॉइंट? प्लीज एनीवन राइट? Okay, so addition. Next point is, next point, collinearity. Okay, take the screenshot. Collinearity and coplanarity. Okay. ये इतने पॉइंट्स जो मैं लिखा रहा हूँ, ये सब सारे पॉइंट 10 चैप्टर और 11 चैप्टर्स की आधी थ्योरी कंप्लीट करती है इसके अंदर, तो ध्यान देना। पॉइंट नंबर 15, collinearity and coplanarity of vectors। कोलिनियर वेक्टर्स ये होते हैं एक ही लाइन पे बने हुए वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम बेस
वेक्टर हैविंग सेम सपोर्ट है उनका, वेक्टर्स एक ही लाइन पर बने हुए हैं, सब सपोर्ट उनका सेम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन आगे इधर उधर हो सकती है, डायरेक्शन उनकी अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है, पर वो एक ही सपोर्ट पे बने हुए जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, इफ A and B are collinear, then ऐसा लिखूंगा मैं, if AB and BC are collinear, then AB equal to T times of BC, means AB is parallel to BC with point B कॉमन। एक पॉइंट बी कॉमन है हमारे पास इसमें, देखो पॉइंट बी कॉमन होने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, ए से बी, अभी इसमें दो ही बताते हैं हम, ए से बी और बी से सी, ये दो वेक्टर्स हैं ए बी और बी सी। इन दो वेक्टर्स ए बी और बी सी को हमें कोलिनियर प्रूव करना है, तो मैं क्या प्रूव कर रहा हूं, ए बी वेक्टर इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, implies vectors are parallel, ये डिफाइन है पैरेलल वेक्टर्स की, लेकिन उसमें एक पॉइंट कॉमन है, इफ वन पॉइंट कॉमन देन वेक्टर्स आर कोलिनियर। पैरेलल वेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में अगर एक पॉइंट कॉमन हो जाए, पैरेलल भी और वन पॉइंट कॉमन, ये तो आप जानते हैं पैरेलल वेक्टर्स में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं, पर हम पैरेलल विथ वन पॉइंट कॉमन बोल रहे हैं ना, इसका मतलब जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ है टर्मिनल पॉइंट, वही से दूसरा वेक्टर उसी सपोर्ट पे स्टार्ट हो जाएगा विथ इनिशियल पॉइंट ऑफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द प्रीवियस वन, मतलब प्रीवियस वन का पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट बन रहा है और उसी सपोर्ट पे चल रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। एग्जाम्पल लिखता हूं देखो मैं, इन टर्म्स ऑफ आई जे के, क्योंकि अब तो हमने अलजेब्रा पढ़ ली, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस 4i प्लस 3j माइनस प्लस 2k, नहीं 4i प्लस 2j प्लस 6k। अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2i प्लस j प्लस 3k बन जाएगा, देन यू विल फाइंड 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, सिंस बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, दिस इंप्लाइज बी इज पैरेलल टू ए, बी और ए पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर प्रूव हो गए। अब अगर इनको मुझे क्या प्रूव करना है, कोलिनियर है, तो फिर क्या होगा, कोलिनियर प्रूव करने के लिए पॉइंट्स ए बी सी गिवन होंगे, क्योंकि हमें यहां पर इसमें पता नहीं लगेगा कि ये पैरेलल है, कोलिनियर है कि नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको अगर ए बी वेक्टर ये दिया है, जैसे मान लो ये ए बी वेक्टर बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर ए वेक्टर है, तो इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे, फिर तो उससे हम क्या कर बनाएंगे, पहले हम ए बी वेक्टर बनाएंगे और सी डी वेक्टर बनाएंगे, वो इसका नाम ए और बी वेक्टर दे देंगे, और फिर हम ये बता देंगे कि इसका ये बी और सी पॉइंट कैसे आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, मतलब ए बी और सी डी कॉन्साइड हो रहे हैं, ए बी और इसको अपन बी सी लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला वेक्टर इसके आगे चला जाएगा, मतलब ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बीसी वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को क्या प्रूव कर देता हूं, ए बी और बीसी को क्या प्रूव कर देता हूं, पैरेलल, तो ए बी वेक्टर को मैंने क्या ले लिया है, बी वेक्टर, और बीसी वेक्टर को मैंने क्या ले लिया, ए वेक्टर, तो वन इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर विथ वन पॉइंट कॉमन, तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस करके बताऊंगा मैं, ऐसे फॉर्मेशन इस तरह से पॉइंट्स में लेना पॉसिबल नहीं है, इस तरह की कंडीशन आएगी, लेकिन वहां पॉइंट्स दिए होंगे, तो उससे ये वेक्टर बनेगा, समझ रहे हैं आप कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट ए बी ओ बी माइनस ओ ए, उससे बनाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट,
कोप्लेनरिटी, वेट वेट वेट, कोप्लेनरिटी भी लिख देता हूं, कोप्लेनरिटी, ये कोलिनियर था, कोलिनियर के लिए बताया। कोप्लेनरिटी में वन प्लेन, उसमें बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, ये खूब सारे वेक्टर्स हैं। ये मान लो कैपिटल वेक्टर आर है, स्मॉल वेक्टर आर वेक्टर दे रखा है, सबसे बड़ा वेक्टर है ये, और ये दूसरे वेक्टर है छोटे छोटे। इफ one vector of out of these vectors, one vector can be expressed as a scalar multiple of other, and so on, then a b c r all are coplanar। ये डिफाइन है इसकी। जैसे इस बोर्ड में मैंने जितने भी वेक्टर्स बना रखे हैं, ये जैसे ए बी वेक्टर बना रखा है, बी सी वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स बनाता हूँ, एक प्लेन में जितने भी वेक्टर्स बनते हैं ना, वो सारे वेक्टर्स कैसे होते हैं? कोप्लेनर। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में। लेकिन वेक्टर को हम कैसे प्रूव करेंगे? क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, क्या हम क्या प्लेन बनाएंगे उसके अंदर बनाएंगे क्या ज्योमेट्रिकली? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हाउ? तो हम क्या करेंगे, उसमें से कोई भी एक वेक्टर ले लेंगे, जैसे 3-4 वेक्टर दे रखे, प्रूव दैट दिस 3-4 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोई भी एक वेक्टर ले लो, कोई सा भी, फर्स्ट वाला जनरली हम लेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, फर्स्ट वेक्टर, मतलब उसको मैं आर मान लेता हूं, ये फर्स्ट वेक्टर जो दिया आर वेक्टर ले लिया। ये दूसरे जो बचे में 3 वेक्टर और दे रखे हैं मान लो साथ में, या 4 और दे रखे हैं, उन सब में एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर का मल्टीप्लाई कर दो। जनरली 4 मिलेंगे, 4 से ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा अननोन वेरिएबल होंगे उतनी बड़ी इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करना टफ हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 4। तो एक तो अपना हो गया आर, उसमें से इधर आर लिख दिया, और उसके साथ में एक्स इंटू ए, वाई इंटू बी, जेड इंटू सी लिख देंगे। तो देखो 3 वेरिएबल की भी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, आपको 3 इक्वेशन मिल जाएगी आईजेके की, आईजेके के कोफिशिएंट को कंपेयर करके इन एक्स वाई एंड जेड। उनको सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? एक्स वाई जेड मिल जाएगा। अगर एक्स वाई जेड मिलते हैं तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। और अगर मान लो आपको एक्स वाई जेड खत्म हो जाते हैं, एक्स वाई जेड कुछ मिलता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, मीनिंगलेस चीज आ जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, कुछ भी उटपटांग आ जाता है, तो हम बोल देंगे ये वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है। हो सकता है ये डिफरेंट प्लेन्स में हो। डिफरेंट प्लेन का मतलब समझ गए ना आप? ऐसे अलग अलग प्लेन, फ्लाईओवर्स सबसे अच्छा एग्जांपल है, नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से बस जा रही है, ये डिफरेंट प्लेन्स। या फ्लाईओवर्स, दिल्ली के बड़े बड़ी कंट्रीज के अंदर फ्लाईओवर्स आपने देखे होंगे, जो ब्रिजेस बने होते हैं, एक के नीचे एक, ऊपर से भी जा रही है कार, नीचे से जा रही है, इस तरह से दिखते हैं ना, वो डिफरेंट प्लेन्स का एग्जाम्पल है। वहां पर उनको आप स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं, जो ब्रिजेस बने हुए। या एक इस कमरे कमरे के अंदर जो 4 वॉल है, अलग अलग 4 प्लेन है वो, तो एक उस वॉल पे बना हुआ है, एक इस वॉल पे बना हुआ है। एक स्क्रीनशॉट। इसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड भी यूज होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन, इस चीज को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डीआरएस एंड डीसीएस हो चुका है इसके अंदर ना, डीआरएस एंड डीसीएस लिख देता हूं एक बार और पॉइंट के हिसाब से। 16 नंबर ना, पॉइंट नंबर 16।
L is to M is to N, S to B is to C. DRS and DCS. ये क्या लिख दिया? LMN आएगा, सॉरी ना, ये सब पढ़ा दिया अभी जस्ट मैंने, वो इसको पॉइंट के कारण इसको उसमें अलग लिख दिया था हमने, इसलिए एक बार वापस लिख दिया है। इसका रिलेशन ये होता है cos अल्फा इक्वल टू L इक्वल टू ए अपॉन क्या लिखेंगे हम, मॉड ए, है ना, cos बीटा इसका मॉडुलस, मॉड ए नहीं, मॉड ए वेक्टर का मॉडुलस, मॉड ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का मॉडुलस सी अपॉन मॉड ए कितना होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मैंने एक्स वाई जेड से लिखा ना, अभी यहाँ पर ए बी सी यूज करा, मैंने आपसे बोला ना दोनों ही चलते हैं इसलिए ये तो लिखी हुई टर्म ये, अरे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से बताते हैं इनको। ए कैप ए आई एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ए कैप, ये ए कैप का फॉर्मूला है और ये ए वेक्टर का फॉर्मूला है। जो अभी पढ़ा दिया है मैंने वापस एक बार लिख दिया है आपको 16 पॉइंट में, अभी समझाया मैंने आपको, अभी आज स्टार्ट हमने इसी से किया था। 17 पॉइंट, 17 पॉइंट, ओके, डॉट प्रोडक्ट मीन्स 17 पॉइंट से स्टार्ट होता है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स का 10.2 एक्सरसाइज में आता है, आप देख लेंगे एनसीईआरटी की बुक में, तो हम 10.1 स्टार्ट करेंगे कल। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, लीव मीटिंग।